السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 216 نمبر کی کلاس ہے۔ کافی لمبے عرصے کے بعد وقفے کے بعد یہ کلاس دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کلاس کو مکمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی کلاسز میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تلاوت کو کم کر کے ترجمہ بڑھا دیا ہے، آیتیں بڑھا دی ہیں تاکہ جلدی ہم اس تدبر قرآن کو انشاءاللہ مکمل کر لیں۔ طریقہ وہی رہے گا، سب سے پہلے آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ رہے گا، پھر مشکل الفاظ ہوں گے، پھر تدبر اور اس کے بعد آپ کے سامنے عمل کا ذکر کیا جائے گا۔ آج آپ کے سامنے جو آیتیں میں انشاءاللہ مکمل کروں گا، سورہ یونس کی آیت نمبر 54 سے 70 آپ کے سامنے آج میں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ تدبر اور عمل کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہر وہ انسان جس نے ظلم کیا ہے اگر وہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے بدلہ دینے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دے دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی محسوس کریں گے، یعنی دنیا سے اگر آپ چلے گئے اس کے بعد آپ کچھ بھی دے دو آپ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا پاؤ گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ جب فیصلہ کرے گا تو عدل والا فیصلہ ہوگا، وہاں کوئی ظلم کوئی غلط کام تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی آسمان کی ساری نعمتیں زمین کی ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کو شفا دینے والی چیز یعنی قرآن آیا ہے، ہدایت آئی ہے، رحمت آئی ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات کو، قرآن کو، اس کی فضیلتوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو قرآن تمہارے پاس بھیجا ہے نا، وہ قرآن ہدایت ہے، وہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، وہ رحمت ہے، وہ سکون ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ وہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں تم جمع کرتے ہو نا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم قرآن کو جمع کرو، نیکیوں کو جمع کرو، دینی تعلیمات کو جمع کرو، یہ دنیا کی دولت جمع کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو رزق نازل کیا ہے تم اس میں سے کچھ حرام اور حلال کر لیتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ کفار مکہ میں ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے اعتبار سے جانوروں کو حلال و حرام کر لیتے تھے، یہ جانور حلال یہ جانور حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام کا اختیار تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے رسول تمہیں بتائیں گے۔ دین میں نہیں آیا تم اپنے اعتبار سے کیسے حلال و حرام کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا فیصلہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے گا؟ یعنی تم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑے فضل و انعامات کرنے والا ہے لیکن زیادہ تر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے اکرام کیا، اللہ نے انعام دیا، پر زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وما تکون فی شأن ولا تتلو، یہ بڑی عجیب سی ایک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھ دے رہا ہے کہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ تم جب کسی بھی کام میں ہوتے ہو، تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھتے ہو، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، پر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ جب تم اس میں ڈوب جاتے ہو تب ہم گواہ ہوتے ہیں۔ تمہارا عمل، تمہاری نیکی، تمہاری تلاوت قرآن، تمہارا چھوٹا بڑا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔
वमा याजुबु अन रब्बिका मिन मिस्काला ज़र्रतिन फिल अर्द वला फिस समा, और अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारे अमल का जर्रा भी छुपा हुआ नहीं है, चाहे जमीन आसमान जो भी हो, अल्लाह ताला उससे छोटे को भी जानने वाला है और अल्लाह ताला बड़े को भी जानने वाला है। हर चीज अल्लाह ताला ने किताब में लिखवा रखी है, यानी अल्लाह ताला से तुम्हारा कोई अमल छुपा हुआ नहीं है। नेकी करते हो तो अल्लाह जानता है, बदी करते हो तो अल्लाह जानता है, अच्छे बुरे को अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है, अल्लाह ताला के इल्म से कुछ भी बाहर नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने वलियों के बारे में बताया, जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में बताते हुए इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लीजिए कि यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उन पर कोई खौफ नहीं होता है, कोई गम नहीं होता है। अल्लाह का वली किसी से नहीं डरता, उस पर कोई खौफ और गम नहीं होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यहाँ पर अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि कौन है अल्लाह के वली, जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। ईमान वाले अल्लाह के वली होते हैं, तकवे वाले अल्लाह के वली होते हैं, अमल करने वाले अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह ताला अपने औलिया की सिफत बता रहा है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में, अल्लाह के वादों में कोई तब्दीली नहीं है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी अल्लाह ताला अपने औलिया की दुनिया में भी मदद करता है, आखिरत में भी मदद करता है, उन पर इनामात, इकरामात, एहसानात अल्लाह ताला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज का तज़किरा आज की आयत में कर रहा है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को एक सुकून दे रहा है कि जब नबी लोगों को दावत देते थे ना, तो लोगों ने गालियां देते, बदतमीजी करते, इल्जामात लगाते, एतराजात करते। अल्लाह यहाँ पर अपने नबी को सुकून दे रहा है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, उन लोगों की बात आपको तकलीफ में न डाले। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह के लिए है, और वो सुनने वाला और इल्म वाला है। यानी अगर ये आपको जलील कर रहे हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत का इख्तियार अल्लाह के पास है। दुनिया सारी मिलकर किसी को जलील करना चाहे, अल्लाह इज्जत देना चाहे, वो जलील नहीं कर पाएंगे। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, अब यहाँ पर अल्लाह एक और बात बता रहा है कि जमीन में जो है मखलूकात, आसमान में जो है मखलूकात, वो सब अल्लाह ताला की हैं। वमा यत्तबिउल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि शुरका, और जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत कर रहे हैं ना, असल में वो शुरका बना रहे हैं, वो शरीक बना रहे हैं। इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्न, वो तो अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं और वो तो अंदाजे लगाने वाले हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत मत करो, अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत मत करो, अल्लाह को छोड़कर मुर्दों की इबादत मत करो, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद मत बनाओ। अल्लाह ताला इस अमल को पसंद नहीं फरमाता है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल, अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमत का जिक्र कर रहा है। वही अल्लाह ताला की जात है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम सुकून हासिल करो, दिन बनाया ताकि तुम आसानी से चीजों को देखकर अपना अमल पूरा कर सको। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें सुनने वाली कौम के लिए निशानियां हैं, यानी जो सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी बनाते हैं, उनके लिए बड़ी निशानियां इसके अंदर कि अल्लाह रात को लाता है, दिन को लाता है। अल्लाह ने एक सिस्टम और एक मैनेजमेंट बनाया है, दिन कब आएगा, रात कब आएगी, कब आना, कब जाना, टाइमिंग, शेड्यूल, ठंड के दिन अलग, गर्मी के दिन अलग, कब रात लंबी, कब दिन लंबा, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कुफ्फार के अमल का जिक्र कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ यहूद और नसारा ये अमल करते हैं कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने लिए लड़का बना लिया, बाबरकत है अल्लाह, वो बेनियाज है, उसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा, क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील है कि अल्लाह का लड़का है? अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात बोल रहे हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो? कैसे बोल सकते हो तुम? जैसे नसारा ने हजरत ईसा को बना लिया, यहूद ने हजरत उज़ैर को बना लिया, जबकि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह ताला औलाद से बरी है। कुल इन्नल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कभी कामयाब ना होंगे। अल्लाह पर झूठ बोलने वाला कभी कामयाब ना होगा, अल्लाह ताला के खिलाफ बोलने वाला कभी कामयाब ना होगा। मताअन फिद दुनिया, दुनिया में थोड़े दिन आराम मिलेगा, थोड़े दिन तुम्हें फैसिलिटीज मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अजाब चखाएगा, शदीद अजाब, बिमा कानू यकफुरून, उनके कुफ्र के नतीजे में। जो वो कुफ्र करते हैं ना, उसके नतीजे में अल्लाह ताला अजाब देगा। यहाँ पर अल्लाह ये भी बता रहा है कि अगर कोई कुफ्र करता है, गलत अमल करता है, फिर भी दुनिया में नेमत में है, तो टेंशन मत लो, ये थोड़े दिन का आराम है, इसके बाद अजाब शदीद है,
जहन्नम का अजाब, कब्र का अजाब, आखिरत तक का अजाब, आखिरत बाद का अजाब। इसलिए कुफ्र और शिर्क पर जिंदगी गुजारने वालों की नेमतों से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। अब ये तो हुई आज की आयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने जिक्र की, मैंने उसका तर्जुमा आपके सामने रख दिया। अब आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, लफ तदत, ऑफर इट इन रैंसम, अगर तुम फिदिया देना चाहो, बदला देना चाहो, लफ तदत बदला देना चाहो कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किए, इसके अपोजिट में रैंसम मुझसे तू ये ले ले, माल ले ले, दौलत ले ले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अन्नदामा कहा जाता है रिग्रेट को, शर्मिंदगी महसूस करना। मौइज़त कहा जाता है इंस्ट्रक्शन को, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर इंस्ट्रक्शंस आए हैं, अहकामात आए हैं, कानून आया है। फलियफरहू, लेट देम रिजॉइस, उन्हें खुश हो लेने दीजिए, जरा दिन उन्हें खुश हो लेने दीजिए। अदिना लकुम, परमिटेड टू यू, अल्लाह ने तुम्हें परमिशन दी है, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। तफ्तरून, यू इन्वेंट, तुम तो गढ़ रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो झूठी बातें कर रहे हो। शुहूद का मतलब होता है विटनेस, गवाह। क्या तुम अल्लाह ताला पर इस बात पर कोई गवाह है तुम्हारे पास? तुफीदून, यू आर इंटूलेट, तुम लोग उसके अंदर जब घुस जाते हो, अंदर चले जाते हो, दाखिल हो जाते हो, किसी भी चीज की डीप में चले जाते हो। मिस्काल ज़र्रतुन का मतलब होता है एटम्स वेट, जिसको हम एटम कहते हैं ना, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। इतने जर्रे के बराबर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह जानता है, जर्रे के बराबर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह जानता है। याद वो मतलब एब्सेंस, यानी अल्लाह से कुछ भी गायब नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। यह जुन का ग्रीव यू, आपको तकलीफ पहुंचती है, आपको परेशानी होती है, आपको दुख महसूस होता है। यखरुसून, मिस जजिंग, वो लोग तो सिर्फ गलत फैसले कर रहे हैं, बस अंदाजे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं। लितस्कुनू, टू रेस्ट, ताकि तुम आराम करो, रात बनाई ताकि तुम आराम करो। मुबसिरा, दिन कैसा बनाया? साइट, कि तुम देख सको, आसानी से चीजों को पहचान सको, अल्लाह ने दिन ऐसा बनाया। अल गनी मतलब होता है फ्री ऑफ नीड, किसी की जिसको जरूरत ना हो, बेनियाज, किसी की जरूरत ना हो। सुल्तान कहा जाता है अथॉरिटी को, परमिशन देने वाला, सुल्तान, मालिक। मताउन कहा जाता है इंजॉयमेंट, ये जो कुफ्र कर रहे हैं ना, दुनिया में बस इंजॉय कर रहे हैं, थोड़े दिन की दुनिया इंजॉयमेंट मिल रहा है, उसके बाद सब खत्म, अजाब ही अजाब, अजाब के सिवा अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये हुए कुछ मुश्किल अल्फाज जो आज की आयत में हमारे सामने आए, जिसका तस्करा मैंने आपके सामने किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की इन आयत में कुछ चीजों को हमारे सामने जिक्र किया है। अब इसके बाद जो हमारा बुनियादी मकसद होता है तदब्बुर, आज की आयत पर हमने क्या गौर किया, आज की आयत से हमें क्या समझ में आया? नंबर 1, अपने गुनाहों के बदले में माल, सदका, नेकी, नमाज से बदला दे दिया करो। यानी अगर गुनाह हो जाए ना तो सदका करो, नेकियां करो, नमाज पढ़ो, रोजा, ज़कात, हज, जो कर सकते हो नेकियों से अपने गुनाहों को कम करो, क्योंकि वहां माल नहीं चलेगा, दौलत नहीं चलेगी, पैसा नहीं चलेगा। अगर दुनिया में किए गए गुनाहों का खात्मा चाहते हो तो माल, दौलत, नमाज, नेकी, इबादत के जरिए अपने गुनाहों को माफ करवाओ, क्योंकि वहां पर माल काम आने वाला नहीं है। नंबर 2, जो दुनिया में अपने गुनाह से शर्माता नहीं है वो आखिरत में हसरत करेगा। हम लोग करते हैं ना गुनाह, पर गुनाह करके भी शर्मिंदगी नहीं होती, हराम करके शर्मिंदगी नहीं होती, दिल दुखा रहे एहसास नहीं होता, हराम खा रहे एहसास नहीं होता, कर्जे लेकर अदा नहीं कर रहे एहसास नहीं होता, माँ बाप के नाफरमाने एहसास नहीं होता, हराम कर रहे पर एहसास नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती ना। जो यहाँ शर्मिंदा नहीं हो वहां शर्मिंदा होगा, वहां हसरतें करेगा, वहां लौटने की तमन्नाएं और आरजुएं करेगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। नंबर 3, जब फैसला करो इंसाफ वाला फैसला करो। अल्लाह इंसाफ करने वालों को बड़ा पसंद करता है। अगर आपको कोई मौका पड़े कि मुझे फैसला करना है दो लोगों के दरमियान, ये मत देखो कि इसमें मेरा पसंदीदा कौन है, मेरा करीबी कौन है, मेरा ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला कौन है। फैसला करना है तो अदल वाला फैसला करो, इंसाफ वाला फैसला करो, चाहे उसके अपोजिट करना पड़े जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन अदल और इंसाफ वाला फैसला एक मोमिन को करना चाहिए। नंबर 4, आसमान और जमीन की कोई भी चीज अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। यहाँ पर क्या समझ में आया? आज के हालात पर गौर करो, ताकत, कुव्वत, सतवत, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग, न जाने क्या, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह कह रहा आसमान जमीन में कुछ बाहर है ही नहीं मेरी ताकत से, सारा आसमान, सारी जमीन, ये तो इतनी सी जमीन है, अल्लाह कह रहा सारी जमीन मेरी ताकत में,
सारी आसमान मेरी ताकत में है, इसके अंदर रहने वाली मेरी ताकत में है, यानी अल्लाह की कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है, उस पर यकीन करो, उस पर तवक्कुल और मजबूत भरोसा मोमिन को करना चाहिए। नंबर 5, हुज्न, गम, बीमारियों से शिफा के लिए कुरान पढ़ना चाहिए। जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन फील होने लग जाए, गम महसूस हो, दिल भारी लगने लग जाए, बीमारियां ज्यादा आकर घेर लें, कुरान पढ़ा करो। अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कुरान पढ़ने से अल्लाह दिल को सुकून देता है, टेंशन कम करता है, गम कम करता है, परेशानी कम करता है। तो जब गम, हुज्न, मलाल, बीमारियां आकर घेर लेना, कुरान की तिलावत किया करो। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बीमारी, हर परेशानी में शिफा देता है। नंबर 6, अल्लाह ने ईमान और कुरान दिया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुशी का इजहार करो, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह ने अगर आपको ईमान और कुरान दिया है ना, तो खुशी का इजहार करो, शुक्र अदा करो, क्योंकि इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। जैसे आज अल्लाह ताला ने हमें इतने सारों के दरमियान चुना और मोमिन बनाया, कलमा पढ़ने वाला बनाया, तौहीद जानने वाला बनाया, तो कहो अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान, अल्लाह तेरा करम, क्योंकि ईमान से बड़ी इस दुनिया के अंदर कोई दौलत नहीं होती है। तो अल्लाह ने अगर आपको ईमान और कुरान दिया है, तो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई दौलत दुनिया के अंदर दूसरी नहीं होती है। नंबर 7, हलाल और हराम का फतवा बिना इल्म के मत दो। हमारे यहाँ लोगों की जबानें बिल्कुल आसानी से चलती है, ये हलाल है कर लो, ये हराम है हराम। कई लोग हमारे होते हैं ना, दीन में इतने डीप में चले जाते हैं, इतना ज्यादा अपने को आपको दीनदार मानते हैं, जानवर का ये हिस्सा हराम, ये हिस्सा मकरू, ये हिस्सा हराम, ये खाना हराम, वो खाना हराम, ये हलाल, वो हराम। ये फतवे देने के पहले इल्म हासिल कर लिया करो। आम तौर पर देखना, जाहिल फतवे जल्दी देते हैं, आलिम जल्दी फतवा नहीं देता है, क्योंकि आलिम को गौर करना पड़ता है, आलिम को दलीलें देखना पड़ती है। हलाल और हराम बोलने के पहले डर लगता है, ये कहीं ऐसा ना हो मैं हलाल बता दूं वो हराम हो, मैं हराम बता दूं वो हलाल हो। इसलिए हलाल और हराम का फतवा कभी भी बिना इल्म के नहीं देना चाहिए। नंबर 8, रिस्क का नाजिल करने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई रोजी का देने वाला नहीं। खालिक वही, मालिक वही, खाना वो देता, बारिश वो बरसाता, कारोबार वो चलाता, परेशानी वो दूर करता। अल्लाह के सिवा कोई रोजी का देने वाला नहीं है। बंदे मोमिन को इस बात पर मजबूत यकीन होना चाहिए। नंबर 9, जब नेक अमल करो तो नीयत खालिस रखो कि अल्लाह देख रहा है, और जब गुनाह करो तो डरो अल्लाह देख रहा है। जब कोई नेकी कर रहे हो, गरीब की मदद कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, ज़कात दे रहे हो, रोजा है, हज है, अच्छाई है, कोई भी नेक अमल कर रहे हो, यकीन रखो अल्लाह देख रहा है। और जब गुनाह कर रहे हो, कोई भी गुनाह कर रहे हो, यकीन रखो कि अल्लाह देख रहा है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह को याद करो। जब ऐसा करोगे ना, तो अमल में रियाकारी नहीं आएगी। क्यों? कि जब मुझे पता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो मैं दिखावा क्यों करूं? और गुनाह करने से रुक जाओगे कि क्यों गुनाह करूं, अल्लाह देख रहा है। तो नेकी करते वक्त भी अल्लाह को याद रखो, गुनाह करते वक्त भी अल्लाह को याद रखो कि अल्लाह ताला देख रहा है। और इससे फायदा क्या होगा? रियाकारी का खात्मा हो जाएगा, गुनाह का खात्मा हो जाएगा। अगर बंदा ये तसव्वुर कर ले कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। नंबर 10, अल्लाह के वली वही हैं जिनमें ईमान और अमल पाया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे झूठे वली घूम रहे हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के वली हैं, और देखो तो नमाज ही नहीं पढ़ते, गंदे रहते हैं, बिना वजू बिना गुस्ल के रहते हैं, गंदे संदे जगहों पर पड़े रहते हैं। अल्लाह का वली वो जिसमें तकवा और अमल, अल्लाह ताला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के वली वो जिनमें ईमान और अमल तकवा पाया जाए, दीन पर अमल करने वाले। अल्लाह के वली कौन होते हैं? कुरान वाले, हदीस वाले, नमाज वाले, रोजे वाले, ज़कात वाले, तौहीद वाले, अमल तलाश करने वाले, सुन्नतों पर अमल करने वाले। अमल, ईमान और अमल करने वाले ही अल्लाह ताला के सच्चे वली होते हैं। नंबर 11, अल्लाह से अगर अपनी कुर्बत देखना हो तो चेक करो नेकी में मजा आता है कि नहीं और गुनाह में डर लगता है कि नहीं। ये चेक कर लो बस। अगर आपको चेक करना है ना कि मैं अल्लाह के करीब हूं कि नहीं हूं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, अल्लाह मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, बस इतना कर लो कि नेकी करने में मुझे मजा आता है क्या, गुनाह करने में मुझे डर लगता है क्या। अगर नेकी में मजा और गुनाह में डर है, मतलब अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, और अगर ये नहीं है, मतलब अल्लाह नाराज, अल्लाह रूठा हुआ है, अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता है। नेकी में मजा आए, गुनाह में डर लगे, इससे बंदा अल्लाह की कुर्बत को चेक कर सकता है। नेक्स्ट, नंबर 12, जब भी ख्वाहिशात शरीयत से टकराए तो शरीयत को आगे बढ़ाओ। मेरा दिल क्या चाहता है ये इस्लाम में नहीं चलता, मेरा दिमाग क्या चाहता है ये इस्लाम में नहीं चलता, मेरा रब क्या चाहता है ये इस्लाम।
میرے نبی کیا چاہتے ہیں یہ اسلام ہے. میرا دل کہتا ہے حرام کرنا پر اللہ پسند نہیں کرتا مطلب حرام. میرا دل کہتا ہے لون لے لوں پر اللہ کہتا ہے نہیں مطلب نہیں لینا ہے. میرا دل کہتا ہے جائیداد پر قبضے کر لوں اللہ کہتا ہے نہیں مطلب نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی جو کہہ دے میری خواہشات میری چاہت میری طلب یہ سب پیچھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا بندے کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 13 اولیاء کو دنیا میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں ان کی مدد کرتا ہے انہیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی دنیا میں مدد کرتا ہے آخرت میں مدد کرتا ہے. دنیا میں مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچاتا ہے. تو دنیا میں مدد کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کو اپنا معبود اپنا خالق اپنا رب العالمین مانتا ہے. ایسے اولیاء کی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر یقیناً مدد فرماتا ہے. نیکسٹ نمبر 14 جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں بنا دیتا ہے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کے پاس کیا تھا, مکہ سے نکلے خالی ہاتھ, گھر چھین لیا مال چھین لیا دولت چھین لی, کچھ سالوں کے بعد کتنا مال کتنی دولت. تو جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا اللہ دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. دنیا میں بھی نعمتیں دیتا ہے آخرت میں بھی آسانیاں کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, اللہ کے نبی کی فرما برداری کرے, ان کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. نمبر 15 جب اپنے خلاف بات سنو تو فکر مت کرو اگر آپ صحیح ہو تو اللہ آپ کو عزت دے گا. جب اپنے خلاف کوئی بات سنو نا کہ میرے خلاف یہ بول رہے ہیں میرے خلاف وہ بول رہے ہیں میرے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں یہ بہتان لگا رہے ہیں جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, ٹینشن مت لو, عزت دینے والا اللہ ہے. اگر آپ غلط ہو اللہ عذاب دے گا اور اگر آپ صحیح ہو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور اس بولنے والے کو ذلیل بھی کرے گا رسوا بھی کرے گا عذاب بھی نازل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہتان لگایا ہے, اس نے الزام لگایا ہے, اس نے غلط عمل کیا ہے. کیونکہ عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے. تو اپنے خلاف جب بات سنو تو غم مت کرو, اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا اختیار رکھنے والا ہے. پوائنٹ نمبر 16 اللہ کے سمیع اور علیم ہونے پر یقین رکھو. اللہ سب سنتا ہے, اللہ سب جانتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی ان دو صفت پر ایمان ہو جائے نا انسان آدھا سدھر جائے گا کہ اللہ سمیع ہے, سب سن رہا ہے, غیبت سن رہا ہے, چغلخوری سن رہا ہے, حسد سن رہا ہے, کینہ کپٹ سن رہا ہے, الزامات سن رہا ہے, اعتراضات سن رہا ہے, میرا ہر حرام سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم والا سب جانتا ہے. اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں کس کے لیے کیا سوچتا ہوں اللہ سب جانتا ہے. اللہ کے سمیع اور علیم ہونے پر بندے کو یقین ہونا چاہیے. نمبر 17 انسان کے ساتھ کسی بھی انسان کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دو, اللہ کی رضا کے سامنے کسی انسان کا ساتھ مت دو. یعنی کئی بار جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کرو انسان کہہ رہا ہے ایسا کرو, ہم انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, دین کی بات چھوڑ دیتے ہیں, شریعت کی بات چھوڑ دیتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ کی بات کو انسان کے لیے مت چھوڑو, اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو, اللہ کے دین کا ساتھ دو, حلال کا ساتھ دو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبھی بھی دنیا کے لیے اللہ کو مت چھوڑو, دنیا کے لیے دین کو مت چھوڑو, دنیا کے لیے حلال کو مت چھوڑو, دنیا کے لیے حرام اختیار مت کرو کیونکہ دنیا کبھی آپ سے راضی ہونے والی. یہ دنیا کمیاں نکالے گی, لوگ کمیاں نکالیں گے, آپ کے اندر اعتراضات کریں گے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 18 انسان کا دن اور رات کا وقت متعین ہونا چاہیے کہ رات میں کیا کرنا ہے اور دن میں کیا کرنا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے اور ہم لوگ جسٹ اس کے اپوزٹ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رات اس لیے بنائی ہے کہ سکون حاصل کرو مطلب سو جاؤ, دن اس لیے بنایا ہے مطلب کام کرو دیکھو. ہمارے یہاں رات اس لیے بنائی ہے تاکہ رات میں کرکٹ کھیل کر جاگو, موبائل چلا کر جاگو, اور دن اس لیے بنایا ہے تاکہ 12 بجے تک سو جاؤ.
अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन का मजाक बनाते हैं हम लोग, अल्लाह की शरीयत का मजाक बनाते हैं हम लोग। और इसीलिए जो आपको मिटाने वाले हैं ना, वो सुबह 5 बजे से जागते हैं, और जो मिटने वाले हैं वो सोए बैठे हैं, रातों को जाग रहे हैं, दिनों में सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने रात और दिन का एक शेड्यूल बनाया है। रात आराम के लिए है, रात में सोना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, दिन में अपनी मसरूफियात में लग जाना चाहिए। तो रात और दिन का एक मोमिन के पास मुनज्जम सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिक लाइफ को जीना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ही पसंद फरमाता है। पॉइंट नंबर 19, जो रात और दिन को ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अभी देखते हैं आप, कितना रोशन दिन, सूरज निकला हुआ है, रोशनी बिखेर रहा है, अचानक अल्लाह ताला इसको रात बना देता है, सब खत्म। फिर अल्लाह ताला दोबारा दिन बना देता है। जो दिन और रात को लाने की ताकत रखता है वो कितना ताकतवर होगा। इतने बड़े चांद को हटाने की ताकत रखता है वो कितनी ताकत रखता होगा। इतने बड़े सूरज को हटाने की जो ताकत रखता है वो कितना ताकतवर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि रात और दिन देखकर अल्लाह को याद कर लो कि अल्लाह की ताकत और कुदरत क्या होगी, पर बंदा अल्लाह ताला को याद नहीं करता है। पॉइंट नंबर 20, अकीदे के लिए दलील जरूरी। हमारे यहाँ लोग दीन बांट रहे हैं ना। अभी भी मैं कुछ इंतकाल के अंदर गया तो मैंने देखा नया नया काम शुरू हो गया है। इंतकाल के बाद फौरन 2 रकात नमाज पढ़ते हैं आजकल लोग। इंतकाल के बाद कब्र पर हाथ रखते हैं, 2 लोग इधर से कुछ पढ़ते हैं, इधर से कुछ पढ़ते हैं। हमने अकीदा बना लिया बिना दलील के। अकीदा है ये, आपका अमल है ये, आपका दीन है ये। दीन में अमल के लिए दलील होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि शरीयत में ये अमल होता तो अब क्यों पता चला? 10 साल पहले कोई इंतकाल में जनाजा उठते ही औरतें नमाजें पढ़ती थी क्या? कब्र पर हाथ रखकर दुआएं मांगी जाती थी क्या? सर की जगह पैर की जगह उंगली रखकर दुआएं मांगी जाती थी क्या? अगर नहीं तो इसका मतलब वो दीन नहीं है। और अभी अगर किया है तो इसकी दलील कहाँ है? कहाँ है कुरान और सुन्नत में दलील कि अल्लाह के नबी ने इस अमल का हुक्म दिया? तो अमल के लिए दलील होना चाहिए। नंबर 21, कामयाबी सिर्फ दुनिया हासिल करने में नहीं, कामयाबी आखिरत हासिल करने में। कामयाबी अगर चाहते हो ना तो आखिरत को हासिल करो। दुनिया को हासिल करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर लो, दौलत हासिल कर लो, बड़ा नाम बना लो, रुतबा बना लो, कुछ भी बना लो, आप तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक कि आखिरत को हासिल ना कर लो। इसलिए बंदे की जुस्तजू आखिरत के लिए होना चाहिए, बंदे की सारी मेहनत आखिरत के लिए होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आखिरत के लिए दुनिया में भेजा है, न कि दुनिया जीने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। ये तो हुआ तदब्बुर। अब एक आखिरी पॉइंट है हमारा अमल, कि आज की आयतों पर हमें अमल क्या करना चाहिए या अमल क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आज के दिन से कोई एक अमल शुरू करो जिससे अल्लाह हमें जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। एक अमल आज से शुरू करो। आज से मैं रोजाना एक गरीब को खाना खिलाऊंगा। क्यों? इससे अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर देगा और जहन्नम से दूर कर देगा। एक अमल, एक अमल, कोई सा भी आज से ऐसा शुरू करो जिससे मैं जन्नत के करीब हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। नंबर 2, जब दिल तंग हो जाए, परेशानियां घेर ले, रास्ते नजर ना आए, तो कुरान की तिलावत करो। ये अपना अमल शुरू करो, आज से अमल चालू कर लो, रोजाना कुरान पढ़ो। जब दिल तंग लगता है ना, चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं ना, कोई आसानी नजर नहीं आती है ना, तब कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नए नए रास्ते खुलता है। नेक्स्ट, वो अमल याद करो कि आपने लोगों के लिए दीन को छोड़ा था। जैसे हम लोग करते हैं ना, शादी में दीन छोड़ दिया, अमल में दीन छोड़ दिया, खुशियों में दीन छोड़ दिया, अब्बा बुरा मान जाएंगे, अम्मा बुरा मान जाएगी, ये बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे। आज याद करो एक कोई अमल, एक कोई ऐसा अमल याद करो कि ये अमल मुझे करना था पर मैंने इसके लिए अमल छोड़ दिया। चाचा के लिए छोड़ा, बेटी के लिए छोड़ा, बेटे के लिए छोड़ा, बाप के लिए छोड़ा, बीवी के लिए छोड़ा, शोहर के लिए छोड़ा। कौन सा एक अमल है जो आपने हक था पर आपने छोड़ दिया क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे? याद करो, उसे बदलने की कोशिश करो। नंबर 4, दिन और रात का शेड्यूल बनाओ। रात का आगाज मगरिब से जब होता है, उसके बाद से जब होता है, ईशा के बाद मुझे कब सोना है, क्या करना है, कैसे उठना है, सुबह उठूंगा कब, उठने के बाद क्या करूंगा, उसके बाद काम कौन सा होगा, स्कूल क्या है, उसके बाद जो जो काम हमारे शेड्यूल होते हैं, दिन और रात की अपनी एक तरतीब बनाओ, अपना एक नज्म बनाओ। और आखिरी चीज, बिना इल्म के दीन में कभी मत बोलो। दीन के मामले में चुप रहना ज्यादा बेहतर है। बच जाता आदमी, जब चुप रहता है ना बच जाता है, चुप रहना ज्यादा बेहतर है। पर दीन में बिना दलील के मत बोलो। हमारे यहाँ होता है ना, आमतौर पर खवातीन में ज्यादा होता है, इंतकाल के टाइम इतना दीन बांटती हैं औरतें, महफिलों में बैठकर दीन बांट रही हैं, ये हलाल है, वो हराम है, ऐसा करो, ये पढ़ने के फायदे, वो पढ़ने के फायदे। बिना इल्म के मत बोलो, बिना इल्म के कुछ मत बोलो, क्योंकि बिना इल्म के अगर आपने बोला और सामने वाले ने अमल कर लिया, आपके लिए अजाब का जरिया बन जाएगा, आपके लिए जहन्नम का जरिया बन जाएगा। तो ये कुछ अमल जो आज की आयतों में मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो अमल हम लोग शुरू करने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में मैंने सबसे पहले आपके सामने
आयत नंबर 54 से 70 तक का तर्जुमा बयान किया, उसके बाद मैंने तदब्बुर बताया, उसके बाद मुश्किल अल्फाज बताए, और उसके बाद आखिर में आपके सामने अमल का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इलाही मौला रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम को कहने सुन्नत से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस कुरान से, इस दीन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस तदब्बुर कुरान को मुकम्मल करने की मुझे तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।